Okay. So we have an update column which can accompany edit, either delete. Okay, if you click edit, it will go to the edit page. If we click delete, it will go to delete page. But not only that, it will have to take that ID with itself so that we know which user we have to delete or which user we have to update. So that thing I will do in the same here, which is my here in this column. I created an href update, then PHP, that I say question mark ID equals. So I create a variable ID, which we send with the URL. That means because by default there is a get, like we have in a form command post and get. Okay, and if we specify post, then it will be post, but normally it is by default it is get. So it will be accessible using the $_get in the next form. Okay, and this is called as an edit, and this is the end of this anchor tag. Then I will create here a little separation using the pipe, and then I will again create another anchor tag for the delete. Okay, then I say href, okay, equals to maybe I will say because I need double quotes again, that will mess up with the double quotes of echo, so I have to use the escape sequence. Okay, and I call it delete.php. that show me the delete.php when you click this thing. Okay, again I'm saying when you click the delete.php, then you're gonna send the ID equals to $row, because row has row of ID has that thing. Don't put quotes on it, on this ID, because when we fetch it the data one row at a time from the result set obtained from here, result set is obtained here, which has the everything which this query specifies. From this we get one row at a time. Okay, and like an array. So my SQLi fetch underscore assoc or my SQLi fetch underscore array, you can use both of these. Okay, then row ID has whatever the row ID was in the row at that instance, at that tuple, when we fetched it from the while loop. Okay, uska ID जाएगा इस ID में और वो URL में stuff हो जाएगा. ठीक है? Okay, and I close this href here. I have to use double quotes, but this will mess up with the double quote of the echo command. So I have to use escape sequence. Okay, and then I may say use a JavaScript here called onClick. OnClick means if this button is clicked, if this link is clicked, okay, I'm putting it on the anchor tag. So when the anchor tag is clicked, what should you do when the anchor tag is clicked? This is called onClick. This is the JavaScript which will work for us. Equals to, again, I use escape sequence because I need to use double quotes. Okay, I'm saying Nazima Ayub has come up. Now here I am saying return. Okay, and I use the confirm method of the JavaScript. Confirm. So confirm, I will tell you what is this. Let me write it first. Then maybe I will use single quote. I have to use again the escape sequence. Are you sure to delete? Because when you delete, you need to give one chance to the user, right? Don't go for deletion without giving him the chance. When he says, yes, I'm sure, I just want to delete, then go ahead and delete it. Okay, escape sequence and close this anchor tag, and then close the anchor tag, right? I guess. Then let me see if there is some error. Then I say delete that user, and I close the anchor tag here. Sorry, not here, here. I close the anchor tag here. Okay, and then I have to close this TD, right? I close this TD. Let me see if there is some errors because it's going to mess it up a little bit. Okay, then this is the echo. This is the echo. This echo closed here with the terminator. Okay, Control S. It's coming up the delete. Delete is also coming up there, as you could see. Okay, it's taking a lot of space. Okay, right, like this. Okay, now we got a delete, we got edit.
Now, when I click the delete, it will give me this confirmation that do you really want to delete or not? This is the JavaScript doing things. The confirm method of JavaScript is working here, that which is telling me you don't have to worry about it because you haven't read the JavaScript, then don't worry. This is just an on click. I will explain it first. Let me explain it first, because delete object is not there. I have to create a delete here, delete file, delete. What I'm saying, delete. Oh, sorry. I say new file. And then maybe I call it delete.php, which happens to be here. Maybe I give HTML there and tab. And this is my delete file, delete user. This is delete whatever user file. Okay. I go back to my, what is that called, as a view.php. I will explain what I'm doing here first. Let me maximize this. So with this is my one anchor tag in this, because we have, here is the row, okay, and row ends here, and inside that row these are all columns. We got one TD column, two TD column, third column, and fourth column. In a fourth column, I am saying firstly anchor tag update.php. I'm calling the update.php, and then I will go, when I click this, whatever the text is here between the anchor tag, that is the edit. I click this, it will go to the update.php, whatever the file specifies here. And with that, it will create a variable and send it to the URL. And what will be value of that will be what is in the row of ID, because row will be the associative array having one tuple from the table, because we fetch it from the result set. Result set will have everything what this query specifies, because we said select asterisk from user. So result set will have everything from the table, all the users, and one row out of that table will be fetched, and row will be like an array, associative array having that समझ में आए ना, जो टेबल हमारे पास होगा, देखें आराम से समझे, जो मेरे पास टेबल होगा रिजल्ट सेट के पास सारा होगा, बिकॉज उसने सिलेक्ट एस्ट्रिक किया, इसमें सारे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, 4 और सारी डिटेल्स के साथ साथ होगा, ठीक है। और इसमें से मैं एक रो, ये वाला रो फेच कर रहा हूं, ओनली सिंगल रो, और वो एक एरे में डाल रहा हूं जिसका नाम है रो. दिस रो इज एन एरे because I used MySQL fetch array. So it created an array, okay, and placed this one tuple. This is called a tuple or one row as an associative array. It will be like this. Its name will be ID, value will be 1. Its name will be name and value will be Junaid. For example, whatever was in the database, whatever is here, okay. इसका नाम होगा email and इसमें होगा juni@live.in. Because this associative array, this row, so this will have keys. These are my keys and these are the values. It will be like that. Now, if you want to access them, okay, so you say row of ID, row, because its name is row of ID, वो show हो जाएगा इस column में, because tr from here to here is a one row, okay, it is this row, like one, it creates one row, and these create the column. हेडिंग हमारे पास है ही आईडी, नेम, ईमेल और वगैरह वगैरह, और यहाँ पे जो ये है इको टीडी से क्या बनेगा, कॉलम एक बनेगा, और वहां पे क्या दिखेगा, रो ऑफ आईडी, यानी कि ये रो है, इसका आईडी ये है, दैट इज दिस वैल्यू विल बी शोन हियर, दैट इज 1. सो सेकंड कॉलम टीडी, अगेन सेकंड कॉलम बनेगा, ये वाला कॉलम बनेगा, उसमें क्या दिखेगा, रो ऑफ नेम यानी कि जुनैद. थर्ड कॉलम टीडी से बनेगा, एंड व्हाट विल बी देयर, row of email. So here will be juni@live.in, okay, and after that the last में क्या होगा, यहाँ पे दो आपके एंकर टैग्स हमारे पास है, एक ये वाला एंकर टैग है और दूसरा ये मैंने यहां से शुरू किया एंकर टैग, यहां से मैंने शुरू किया एंकर टैग, ठीक है ना. एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, पहले क्लियर करेंगे, क्लियर ऑल ड्राइंग्स. सो देखिए, एक यहाँ पे एंकर टैग शुरू किया मैंने, जो एंड हो गया यहाँ पे, फिर मैंने पाइप स्टाइल बीच में लगाई इनको, दूसरा एंकर टैग यहां से शुरू किया, उसका href है delete.php. ये इसको क्लिक करने से जो टेक्स्ट आप यहाँ एंकर टैग के बीच में लिखते हो, दिस इज एंकर टैग फॉर एग्जांपल, फिर href में कौन सी लिंक आप लिखते हो, उस लिंक पे ये जाएगा, ठीक है. और एंकर टैग जब आपने क्लोज किया, वहां जो आप लिखते हो, ये जो आपने लिखा टेक्स्ट, और ये एंकर टैग क्लोज हो गया, ठीक है. इस टेक्स्ट जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, इसको क्लिक जब आप करेंगे, इस चीज को जब आप क्लिक मारेंगे, इट विल गो टू दिस साइट. सो वही यहाँ पे एडिट को जब आप क्लिक, दिखेगा एडिट, वहां पे दिखेगा
edit. When you click the edit, it will go to the update.php. Similarly, if you click this text is here, delete, okay, it will go to this file which is saying delete.php, जो href बताती है, href बताते हैं delete.php. so delete को क्लिक करने से it will go to delete.php, लेकिन साथ में लेगा रो आईडी. जो रो आईडी आपका होगा ये वाला रो आईडी जो रो के अंदर है, मैंने बताया अभी, वो आईडी में डाल के यूआरएल में जाएगा उस पेज के पास. सो हमें वहां पे एक्सेस अगर करना है किस आईडी के डिलीट या किस आईडी के एडिट पे हमने क्लिक किया है, उसका आईडी वहां जाएगा एज ए वेरिएबल आईडी. और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट में कह रहा हूं कि ऑन क्लिक, कि जो ही आप इसको क्लिक करोगे, मेथड है ऑन क्लिक, यानी कि इसमें एक लिसनर रहता है, लिसनर, ओके, विच लिसन्स टू दिस, इसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग. कुछ सम क्वेश्चन कमिंग, सर आपने कल आईडी को यूआरएल में डाला, बट अभी तो आपने वो कहीं, अभी हम कहा, अभी तो हमें कर रहे हैं ना पेज, वी विल क्रिएट ना update.php. जो हमारा update.php ये वाला है, वहां वो यूज होंगे ना ये आईडीज, जहां मुझे अपडेट करना है. या डिलीट के लिए जो मैं आईडी ले रहा हूं अभी, वो delete.php में इस्तेमाल होगा, क्योंकि मुझे किस बंदे को डिलीट करना है. ऐसे ही मुझे किस बंदे को अपडेट करना है, ठीक है ना. अभी मैं व्यू पेज पे हूं, दिस इज द व्यू, जो कल का व्यू था, जो हम कल कर रहे थे, इसको मैंने अब ऐड किया यहाँ पे डिलीट भी, ठीक है. अब ये समझे आप, ऑन क्लिक. ऑन क्लिक मींस जो ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर जो डिलीट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, देन व्हाट विल यू रिटर्न, वी से व्हाट आर यू गोइंग टू रिटर्न, यू विल रिटर्न a method called confirm. पहले confirm आप कॉल करोगे, confirm एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि ओके कैंसिल बताएगा आपको, ठीक है. आर यू श्योर टू डिलीट, अगर आपने ओके किया तो रिटर्न आ जाएगा ओके ऑन क्लिक को. तो ये नॉर्मली काम करेगा जो आप डिलीट क्लिक करने से delete.php पे जाओगे. लेकिन अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया तो रिटर्न कैंसिल आ जाएगा. सो इट विल बी एज इफ यू हैव नॉट क्लिक्ड. दिस ऑन क्लिक विल बिहेव एज इफ यू हैव नॉट क्लिक्ड. लेट मी शो दिस thing for you. Little bit of JavaScript also coming up here, क्योंकि थोड़ा सा अब मुझे पढ़ाना नहीं था ये चीज, मैंने कहा ना ये एक वीडियो में ये सारा क्रड खत्म हो जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट की तरह आपको दिखा रहा हूं ये, so that you will understand what is going on properly. अबे इसकी तो यहाँ रहे ना, देखिए जो डिलीट पे क्लिक करूंगा, अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा, सो ऑन क्लिक, जब मैंने कहा कि जो ही इस पे क्लिक होगा, दैट मींस ऑन क्लिक, दिस वन ऑन क्लिक, तो आप रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न कंफर्म मेथड जो रिटर्न करके लाएगा वो रिटर्न हो जाएगा. देखिए अगर आपने ओके पे किया क्लिक तो रिटर्न ओके होगा. सो इट विल बी नॉर्मली जैसे कि आपने डिलीट के क्लिक किया है तो आप delete.php पे जाओगे. लेकिन अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया, रिटर्न कैंसिल आ जाएगा ना. इट विल बी एज इफ यू हैव नॉट क्लिक्ड दिस. सो वी आर गिविंग वन चांस टू द यूजर दैट इफ ही क्लिक्स डिलीट, if I say okay, it will take you to the update.php, ठीक है ना, delete.php. देखो delete.php पे गया और आईडी क्या लिया इसने 1, ठीक है. मैं इसमें लिखता हूं कि delete.php है, एक मिनट, यहाँ delete, यहाँ पे h1 लिखते हैं, टैग h1 हम करेंगे यहाँ पे delete. मैं कहूँगा ये delete user form है, ठीक है, delete user, कंट्रोल S. अब आप देखें, अब वापस जाएं. जब आप, अगर इसको मैं डिलीट करूंगा, समीना को डिलीट, अगर से कैंसिल, इट विल बी एज इफ यू हैव नॉट क्लिक्ड. इफ यू से डिलीट एंड यू क्लिक ओके एंड यू आर गोइंग टू द डिलीट यूजर एंड यू सी द आईडी इज इन अ यूआरएल, एंड यूआरएल वी नो इट इज अ गेट, बिकॉज इट इज डन बाय डिफॉल्ट इज डन बाय द गेट. सो जो गेट मेथड हमारे पास होता है. सो हियर इन अ डिलीट यूजर आई कैन यूज दिस 5 टू डिलीट माय यूजर 5, okay. Or if I want to edit, okay, it goes to the update user and you see there its ID is here, okay. So now I need to update and delete those users which are specified in a view. Hopefully you are getting what is Samina saying. I'm not getting this thing, some kind of similes, but I am not getting what is it. So I go to the update, okay. देखिए user, okay, I कॉल, अच्छा समीना के ऊपर मैंने क्लिक किया इसीलिए. I got it. So you are not deleted yet, don't worry. Anyways, what I'm saying is update पे जब मैं जाऊंगा, यहाँ पे देखिए ये अपडेट यूजर पेज है. जब मैं जो ही मैं अपडेट करूंगा, नो आई नो फर्स्टली दैट जो मेरा अपडेट वाला चीज है
वो आईडी पे काम करने वाला सारा आईडी पे ही होगा ना, ठीक है। तो क्योंकि उसी हिसाब से मुझे अपडेट भी करना है, किस हिसाब से, जो मेरा आईडी होगा उसी हिसाब से तो अपडेट भी होगा, है कि नहीं। सो व्हाट शैल आई डू फॉर दैट, बिकॉज पहले मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज कि वो आईडी हम पकड़ेंगे पहले। यहाँ पे मैं यहाँ पर भी एक वेरिएबल करूंगा आईडी इक्वल्स टू, जो वहां से आईडी आया, जो यहां से आईडी आया वो किसके पास है, बिकॉज दैट इज इन अ यूआरएल। सो यूआरएल मींस दैट इज इन द, where is that, that is in the $_get, the super variable. So if I say $_get, why is it not getting, because it has to be in a PHP, sorry, it can't be in a HTML. Okay, so we do it on the top, not here, sorry. So we create a PHP tag, PHP tag. Okay, here I have to write on the top to update the things also. So I will start from here. So I say $ID equals to $_get, ठीक है। और get में कौन सा वेरिएबल, बिकॉज get के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल खड़ा होगा दैट्स कॉल्ड आईडी, क्योंकि जो ही आपका फॉर्म वहां गया होगा, जो ये आपका यूआरएल में जो चिपका ना, ये जैसे मैंने एडिट किया, फॉर एग्जांपल मैं एडिट कर रहा हूं काउनेन को, जो ये आईडी यहां पे गया 3, this will be in a $_get associative array, and its name key will be same as the variable name, that is the ID, and value will be 3. Okay, if you want to echo this, echo here, echo, you are trying to update user ID $ID. अब देखें इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, कंट्रोल S. Let us go back to this. Say for example I am going to Samina, edit, इसका user ID 5 है. So you are trying to update user ID 5. So I got it now here. I got it 5. जिसको मैं अपडेट कर रहा हूं वही मुझको वहां मिल रहा है, ठीक है। I'm getting that thing only which I am editing here, and user ID 4. So now it is easy to edit user ID 4 because I got the user ID कि मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ठीक है ना, समझ आ रही है। सो इस जो ये आईडी था यहां पे मैं इसको फेच करूंगा, यहां पे द डेटा आई विल फेच, बट फर्स्टली आई विल से हियर session_start. Okay जी, then I include, you can also use include once, okay, because if you want to only include once, this is also one method. We can use include or include once. So right now I'm using include once. I'm using trying to give you all the things, connection.php, because अगर मुझे database के साथ connection करना है तो I need connection.php. Then उसके बाद आप यहाँ जाएं, जैसे एडिट मैंने किया इसके ऊपर, यहाँ पे एक फॉर्म भी मुझे थोड़ा सा दिखना चाहिए जहाँ पे मुझे उसका आईडी यूजर नेम वगैरह हो, जो कि जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। और फिर मैं मुझे, क्योंकि अगर मुझे चेंज करना है ना, इफ आई वांट टू चेंज दैट, सो आई नीड सम काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स हियर जिसको मैं एडिट कर सकता हूँ, है कि नहीं। सो आई नीड सम काइंड ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स हियर, लाइक यहाँ पे मेरा आईडी होगा या टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें नेम चेंज करना। मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए जिसमें मैं लिखूंगा, ओके तो पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे फॉर्म से यहाँ पे अभी करूंगा क्रिएट इधर, और उनके अंदर मैं डेटा लाना चाहूंगा वही जो कि है इस यूजर का, इस यूजर का जो आईडी है वो यहाँ होगा, उसका नेम यहाँ होगा, यहाँ पे ईमेल होगा उसका, एंड देन आई कैन, दिस इज एडिटेबल बिकॉज दिस इज टेक्स्ट बॉक्सेस, आई कैन चेंज दैट, एंड देन देयर विल बी अ सबमिट बटन, ओके, ऑन द क्लिक ऑफ इट व्हाटएवर इज इन द टेक्स्ट बॉक्सेस दैट विल बी अपडेटेड, ठीक है। उमर फारूक समझ में आ रही है? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट आई एम सेइंग। तो पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक मिनट, डिलीट क्लियर ड्राइंग्स। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको 100% समझाऊंगा मैं, ठीक है, बट यू हैव टू स्टे विद मी। तो ओवैस नजीर, योर क्वेश्चन इज दैट आईडी कहाँ इस्तेमाल होगा, दैट इज बीइंग यूज्ड हियर, राइट। ओके, सो फिलहाल मैंने यहाँ पे किया, तो बाद में जब सबमिट बटन करोगे ना, उसके क्लिक पर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ,
that will be here. Okay, that code, what you are, when you click that submit button to update thing, so update stuff will be here. Okay, update stuff will be here. पहले मैं बाकी काम करता हूँ, बाद में भी इस अपडेट के ऊपर आता हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने आईडी लिया, मुझे कनेक्शन भी है मेरे पास, तो मैंने एक आईडी जो लाया यूआरएल से पकड़ के वो आईडी में डाला। ओके, मैं मैसेज भी कर रहा हूँ कि आप इस बंदे को अपडेट करना चाहते हो, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं वो डेटा ही लाऊंगा, उस बंदे का सारा डेटा लाऊंगा मैं भी। सो आई विल सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग दिस आईडी। सो आई विल से सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग अबो आईडी, ठीक है ना। जो ऊपर आईडी है उसकी मदद से मैं लाऊंगा डेटा। तो आई विल हैव फर्स्ट वेरिएबल क्वेरी, जैसे मैं कर रहा था काम वैसे ही करूंगा। आई विल डू द सेम वे, द क्वेरी डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू, okay, then I say select, okay, asterisk. I want to get everything from the table user, but here users is the name of the table. Okay, but I need a where class here, because I need where id, because I want to select only the data of that particular guy. Okay, so it is better to bring them back to same insert from, then change save name or button to update. So it is better to bring them back to same insert form, same name of the button to update. मेरा समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, फिलहाल मैं लिखता हूँ। select asterisk from users where id equals to $id। अभी इसके ऊपर ये देखें, बाद में करते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप, इसके ऊपर ध्यान दें अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप क्या करें काम क्वेरी के अंदर, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, आप सारा का सारा जो भी वहां पे है यूजर को वो लाओ, लेकिन जहां पे आईडी, ये आईडी होगा। सो आईडी जो मेरा ये वाला बंदा है, जैसे मैंने समीना के ऊपर क्लिक किया एडिट, तो समीना का आईडी क्या है 5, तो मैं उसका सारा डिटेल कह रहा हूं, सारी डिटेल उसकी लाओ जहां पे आईडी क्या है 5, यानी कि वो आईडी के पास है यहाँ पे, ठीक है, वो सारा ही लाएगा, ठीक है। दिस विल बी द क्वेरी, बट आई हैव नॉट क्वेरीड येट। ओके, so this query is only a variable. Okay, then I say while, okay, before that I not do the result, I should do the result, because I want to get a result set. From that I will get the whatever I have. Dollar result is equal to MySQLi underscore query. Okay, and I need to give two things. First is the db, $db, and second thing is dollar query, because $db knows everything about database and query knows what to talk, what to get. Okay, then I will use the while and create a variable row, okay, equals to MySQLi underscore fetch अंडरस्कोर एरे, ठीक है ना, और इसको क्या पिलाऊंगा मैं, डॉलर रिजल्ट, ठीक है जी। ओके, दिस इज माय व्हाइल लूप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, और मैं लाऊंगा जो नेम होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे भी हो सकते हैं इस नाम के, इस आईडी के अगर होंगे, बट एक ही होगा वैसे मेरे ख्याल से, तो मुझे व्हाइल लूप लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। यू कैन चेंज इट, डॉलर नेम इज इक्वल टू क्योंकि एक ही तो बंदा है मेरे पास इस आईडी का, तो मैं वाइल क्यों लगा रहा हूं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं लिखता हूं फिलहाल जो नेम हमारे पास होगा वहां पे एनएमई, इसको कैप्स लॉक दब गया, नेम जो मेरे पास होगा इसको लाएं आप, ठीक है ना। नेम में डालूंगा नेम, कंट्रोल, हमारे पास 10 मिनट बच गए यहां से, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट इट। एक तो मुझे नेम चाहिए और ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। सो नेम और डॉलर ईमेल में खड़ा करूंगा एक, और डॉलर पासवर्ड खड़ा करूंगा वो। ओके, ये हो गया नेम, ये हो गया ईमेल, और पासवर्ड तो मुझे जरूरत ही नहीं है बेसिकली, और ये हो गया पासवर्ड। आईडी तो मेरे पास है ही, आईडी तो मेरे पास है ही, मुझे आईडी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो यहां से मेरे पास जो वहां से उसने लाया
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, जो मैं कह रहा हूं, जहां आईडी ये होगा, तो उसमें जो नेम होगा, ठीक है, उस रो के अंदर, उस रो का नेम, नाजमा अयूब, ओके, उस रो का नेम, द नेम ऑफ दैट रो ऑफ नेम, रो ऑफ ईमेल, रो ऑफ पासवर्ड, दैट विल गो इनटू दीज कीवर्ड्स। ओके, एन कहां से आ रहा है, ठीक। सो दिस इज माय व्हाइल लूप हियर। नाउ I will go to first HTML and try to create those values here, ना, fields here. तो पहले इसका जो वहां पे हमने लिखा था, कहाँ पे, व्यू के अंदर ये जो आया ना हमारे पास, ये नेविगेशन, मैं वो वापस इसमें डालूंगा ताकि मैं यहाँ से भी जा सकूं इन चीज़ों में। ऐसे ऐसे कॉपी दिस and I go to update, and I first thing I will do in a body here is Control V, Control S. सो यहाँ पे ये आ गया होम, एड न्यू वगैरह वगैरह। और लाइन नंबर 8 में कुछ मसला है। लाइन नंबर 8 में क्या मसला है? अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी इन, लाइन नंबर 8 में आईडी का क्या मसला हो गया, इसको मुझे समझ नहीं आया मुझे। वेयर आईडी इज इक्वल डॉलर आईडी, डॉलर आईडी यहाँ पर है, गेट आईडी, व्हाट इज इट सेइंग, कंट्रोल एस। ये अभी हो गया, इसके कॉपी करने से हो गया ना। होम PHP, होम एड डॉट PHP, न्यू लॉग आउट डॉट PHP। यहां से मैंने लाया इसको, डॉलर आईडी इक्वल्स डॉलर अंडरस्कोर गेट ऑफ आईडी, ये तो ठीक है। इंक्लूड PHP व्हाटएवर, इको यू आर ट्राइंग टू अपडेट आईडी डॉलर आईडी व्हाटएवर। मुझे जरूरत ही नहीं है, अब इसको बंद ही करते हैं। इसका टर्मिनेटर तो नहीं मिसिंग है। कंट्रोल एस, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी इन लाइन नंबर 5। यहाँ पे क्या बता रहा है कि आईडी मेरे को है ही नहीं। अच्छा, मैं उसके ऊपर मत आया हूँ, अच्छा मैं डायरेक्ट आया हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने लाया नहीं होगा एडिट। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली इसके ऊपर डायरेक्ट आ गया था, नॉट फ्रॉम द व्यू, क्योंकि यहाँ पे जब व्यू से आएंगे ना तब ये आईडी लाएगा ना, इसीलिए कर रहा था ये। इसमें होम में कह रहा हूँ, एड न्यू कह रहा हूँ, और लॉग आउट कह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे व्यू कहना चाहिए मुझे, एक एड के बदले व्यू यहाँ पे करूंगा मैं, व्यू डॉट, बिकॉज आई वांट टू सी अपडेटेड कि वो अपडेट हो गया या नहीं हो गया। तो इसको कहूंगा व्यू यूजर, कंट्रोल एस, कंट्रोल व्यू यूजर, ये मैं सेव कर रहा हूं। फिर ये कौन सा है, व्यू, अच्छा ये व्यू ही है, कंट्रोल Z। यहाँ पे नहीं करना मुझे यहाँ पे करना, इसमें मैं अभी अपडेट पे हूँ, अपडेट इज दिस थिंग। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ व्यू डॉट PHP, और कह रहा हूँ इसको भैया कि ऐड नहीं, व्यू यूजर करो, VIE व्यू यूजर, कंट्रोल S। तो यहाँ पे व्यू करूंगा बाद में, ताकि मुझे दिखे भी कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि मैंने एडिट किया, चेंज किया या नहीं किया, ठीक है ना, समझ में आ रही है। सो नाउ आई गो हियर, अपडेट यूजर, यहाँ पे मैं आऊंगा, और यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग बनाऊंगा, बिकॉज आई वांट दोज वैल्यूज। सो आई कैन पुट अप इन अ फॉर्म टैग, और इसमें दो चीजें मेरे पास है, मुझे पता है कि एक तो होता है इनपुट और दूसरा होता है क्या होता है, मेथड। सो आई कैन से एक्शन, सॉरी इनपुट नहीं, एक्शन। एक्शन मेरा होगा इज इक्वल कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप। मैं कहता हूँ भाई तू वापस मेरे पास ही आ, जो मेरा पेज है उसी पे आ जा, अपडेट डॉट PHP, क्योंकि जो मैं सबमिट करूंगा तो आपको वो सारा डेटाबेस में डालना है फिर, ठीक है ना। अपडेट डॉट PHP करें, उसके बाद इसका मेथड बताएं, मेथड क्या कौन सा होगा, मेथड इज इक्वल पोस्ट हम कहते हैं, डिफॉल्ट तो गेट है लेकिन हम पोस्ट से करते हैं, ताकि वो URL में ना स्टफ हो, जो छुप के रहे, वी नो दैट थिंग। ये हमारा फॉर्म टैग हो गया, और इसमें मैं बनाना चाहता हूं मेरा जैसे नेम हो गया, ईमेल वगैरह वगैरह, वो सारा आई कैन पुट दैट इन अ टेबल फॉर्म ऑल्सो। सो लेट मी पुट अप इन अ टेबल फॉर्म सो दैट इट विल लुक बेटर। ओके, सो यहाँ पे मैं एक टेबल टैग बना रहा हूँ, टेबल,
ओके मैं टेबल का बॉर्डर हम रखेंगे कुछ BORD बॉर्डर इक्वल्स टू से 3 रखते हैं। चले देखते हैं क्या होता है इसका। ओके और बॉर्डर 0 ही रखेंगे। आई डोंट वांट हैव बॉर्डर। देन टेबल के अंदर क्या होता है हमारे पास रोज। दिस इज माय TR 1 रो। ओके और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉलम मेरा होगा TD, दैट इज गोना बी द नेम। ओके दैट मे बी नेम एंड उस नेम के अगेंस्ट ये आ गया आपकी लेबल। जो दूसरा कॉलम इसका होगा जो इसका दूसरा ये होगा वहां पे मैं एक इनपुट बॉक्स लगाऊंगा। इनपुट टाइप विल बी इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है नेम इसका मैं नेम ही रखता हूं। ठीक है अब इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आप वैल्यू क्या रखोगे इसका, ठीक है ना। वैल्यू हैज टू बी, नाउ आई से वैल्यू VALUE। ठीक है ये इनपुट टैग क्लोज भी कहीं पे करना है। ये इनपुट टैग क्लोज हो गया। ठीक है अब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा जो डेटाबेस के अंदर है और वो लाया हमने यहां पे, वो डॉलर नेम के पास है। ठीक है ना। सो वैल्यू का क्या कहूंगा मैं, वैल्यू इक्वल्स टू, लेकिन वो कहां से आएगा, वो जो वैल्यू हमारे पास होगा यहां पे वो मेरे पास डॉलर नेम में है ना, लेकिन वो PHP के पास है, HTML के पास नहीं है। सो आई हैव टू यूज द PHP टैग। So I have to go to the PHP tag and close the PHP tag, and between this PHP tag I can say echo that variable name, that is dollar name। ठीक है जी। PHP tag close किया मैंने यहाँ पे और ये हो गया close डबल कोट्स वैल्यू का, और ये हो गया इनपुट का टैग क्लोज। ठीक है ना। एंड ये PHP का टैग मैंने कहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे। ये PHP का टैग यहाँ क्लोज हो गया, फिर डबल कोट्स, फिर वो वाला क्लोज हो गया, फिर TD क्लोज हो गया। ठीक हो गया, Ctrl+S। तो देखें फिलहाल ऐसे आ गया होम व्यू यूजर। आप समीना के ऊपर करो एडिट, इट्स गेटिंग समीना नेम समीना। ठीक है सो यू वांट टू चेंज अपडेट थिंग्स, you can't update the ID। अगर हम ID यहाँ पे देखें your ID will also be get updated, but I don't want to get updated my I do not want to get update your that the ID। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। सो एक मिनट FN, अगर समझ नहीं आ रहा मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं। पहले मैं एक प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ इसका, पेंट। Sir, we have a form registration.php in which we are saving the data. We can use that for update and then नहीं, रजिस्ट्रेशन के वक्त आप नया यूजर एज ए न्यू यूजर आ रहे हो। अपडेट दूसरी चीज है कि आप ऑलरेडी यूजर हो, देन यू वांट टू अपडेट थिंग्स। यू वांट से कि आप वहां पर ही ऑप्शन रखना चाहते हो अपडेट, वो भी आप कर सकते हो। यस व्हाई नॉट। ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ काम, कि मैंने यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ एडिट, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, देखें मैंने TD यहाँ पे एक रो क्रिएट किया ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए, और नेम कहा, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट किया मैंने इसको। या अगर आप ये नहीं रखना चाहते हो लाइक दिस, क्या बोलते हैं इसको, you don't want to do like this in a table, we can just delete this table, okay, to make it simplified। I don't want